भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। और इसी के साथ करतल ध्वनि के साथ जोरदार तालियों की अपेक्षा करूंगी आप सभी से कि हमारे इस ऊर्जावान सत्र का हम प्रारंभ कर पाए। प्रथम सत्र में हमारे बीच में प्रोफेसर आशुतोष सर और संतोष चौबे सर उपस्थित थे। द्वितीय सत्र में मैं आमंत्रित करूंगी, हमारे बीच में उपस्थित हैं साकेत सिंह कौरव सर। उनका करतल ध्वनि के साथ मैं इस सभागार में, इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत करती हूं, वंदन करती हूं, अभिनंदन करती हूं और जोरदार तालियों की अपेक्षा करूंगी। तालियों की गूंज इतनी दूर तक जानी चाहिए कि ये पूरा प्रांगण गूंज जाए। तो इन्हीं तालियों के साथ में मैं सर का स्वागत करने के लिए हमारे बीच में सहायक संचालक महोदय आदरणीय जितेंद्र सोम कुमार सर से निवेदन करूंगी कि वे यहाँ पर आएं और पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर आदरणीय सर का स्वागत करें। और तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, तालियां बराबर बजनी चाहिए। स्वागत के मधुर क्षणों में हम श्रद्धा के सुमन लिए, हम खुशियों के बीच भरे भावों से करते स्वागत हम। स्वागत के मधुर क्षणों में हम। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। और आगे के सत्र के संचालन के लिए मैं इस मंच पर आमंत्रित करूंगी आदरणीय रविचंद्रन सर को। सर, आप यहाँ पर आए और आदरणीय कौरव सर के ऊर्जावान व्यक्तित्व, ऊर्जावान कृतित्व और उनके द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर प्रकाश डालेंगे। आदरणीय रविचंद्रन सर। So, good afternoon everyone. How is the Josh? Are you all happy? Engaged, immersed? Okay. So it is my privilege to introduce Professor Sri Saket Singh Kaur. He is Curator E and Project Coordinator at the Regional Science Center, Bhopal. It gives me great pleasure to introduce Sir. He is dedicated science communicator and an accomplished museum professional who has played a significant role in promoting scientific temper among students, teachers, and the general public. With extensive experience in designing, developing, and executing science exhibitions, outreach programs, hands-on activities, and capacity building workshops, he has been instrumental in making science accessible and engaging for all age groups. His leadership at the Regional Science Center, Bhopal, has strengthened innovative science education initiatives across Madhya Pradesh, including mobile science programs, teacher enrichment activities, and public engagement events. He is widely respected for his commitment to experiential learning, his ability to connect scientific concepts with real-world applications, and his passion for nurturing curiosity among young minds. His work continues to inspire countless learners and educators to explore, understand, and appreciate the world of science. We are honored to have him with us today, and I warmly invite him to deliver his talk on Beyond the Skies, India's Space Odyssey and the Spirit of Innovation. Over to you, sir. Hello. Good afternoon everyone. मुझे लगता है सब लोग मुझे पीछे तक सुन पा रहे हैं क्या? जो बच्चे इस तरफ बैठे हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूँ. First of all, I am very much thankful to Department of School Education, Government of Madhya Pradesh and NCERT both, because scientific temper cannot be generated
only with few exposures or few interactions in different settings such as museums, schools, colleges, universities, zoos. We need more interactive or more engaging sessions also, workshops, demonstrations like this exhibition. So that's why we need to be very much engaging for learning. Before starting my talk, I would prefer to interact with the school audience also. So that's why I'm saying, जो बच्चे इस तरफ बैठे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं आखिरी तक? हेलो? तो देखिए, सबसे कमाल की बात है. अच्छा, first of all, should I speak in English or Hindi? If you want Hindi, then please raise your hand. Or should I? Yeah, that's why I think democratic decision. I should prefer to speak in English so that wider penetration can be, easy for all of us. As you all know, India is rising, and I'll ask my technical team if they can switch this presentation, so you will be having an idea why we are assembling here. What is the purpose of science? Why we need to explore, experiment, and innovate in this time where India is rising and globally becoming one of the strongest contender for making science very, very driven economy based country, S&T driven economy. That's one of the aims of our country for leading towards self-developed Atmanirbhar Bharat. Without scientific endeavor, it is not easy to achieve that vision and also that aim to make India very strong in most of the dimension of science and technology. As a humanity, it is our moral responsibility to use science for our transformation and also for our country. So now let's begin. Beyond the Sky, India's journey. That's a very tricky and very important subject. Need to understand how we can aspire to become someone. Inspiration comes from various types of resources, sources, and with human beings also, like role models. India is doing very, very, promptly successful work in the field of space. In today's time, ISRO does not need any introduction. I represent Regional Science Center Bhopal, which is a unit of National Council of Science Museums. As you may be knowing, in short, NCSM is a scientific body, non-profit, autonomous, functioning under the Ministry of Culture, Government of India. But main aim is promoting scientific culture in the society through various science centers and museums. For that, we have very strong, hold in making science more connecting through our exhibitions, programs, and various sort of activities within the campus of science centers or science city like Kolkata. On this note, we'll be happy to announce on just 15th of November, our council internationally earned a very reputed award from ICOM for the Science Cities Gallery Climate Change. That is very phenomenal. India has scored internationally very well in this field in this month only. It shows our concern is reaching beyond borders. And beyond the sky, that's our imagination. Here you can see technical team is using this. Can you shift my view from the area? Science is much more than a body of knowledge. It is a way of thinking. I always prefer to choose this quote because it has very deep connection with all of us. Whenever we are studying, whenever we are thinking what should we do, this is the era of technology. Artificial intelligence has taken its own course of time and now it is leading from front. In this time, science cannot be restricted within the four walls or maybe within the books. It is a way of thinking. ये सोच है हमारी कैसे हम एक scientific attitude को develop कर सकते हैं और वो हमारी school life से, हमारे vision से, हमारे dream से जुड़ सकता है. That is very, very critical component as a, catalyst. So that's why one of the famous scientists across the planet, Carl Sagan, one of the famous science popularizer also, he is no more, but he actually was one of the famous science promoter. Like in India, we just this year lost the great Professor J.V. Narlikar from Ayuka. And earlier, few years back, Professor Yashpal. These are two big names in India. They actually started India's science popularization as a
science community based institutional leaders. They actually set role models for all of us. And science museums, science centers in India, they are trying to transform the very culture of scientific engagement. Next. Now, everybody is talking. Since morning, you must have heard about various aspects of your engagement. Professor Asutosh, sir, I think director of IIIT, is one of the famous speakers from his heart, straightforward. He is always talking, interacting. And I think today I'm also interacting, but Chandrayaan 3 does not need an introduction. Being Indian, it's our pride. We are proud of our India's scientific and technical capabilities in which ISRO is leading from front. Why I'm choosing this Chandrayaan 3? Not because we are representing here ISRO. ISRO is in our DNA. Now ISRO does not need or any introduction from any individual, because भारत की जो अंतरिक्ष की उड़ान है, it is a very much part of every home's journey. All of us are interested to know what we are going to do next. Gaganyaan कब आएगा? But Chandrayaan 3 has made us that dream into reality. India can do. India has achieved is one of the strongest feat in the engineering space field by landing successfully Vikram lander of Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 was that biggest role model. Whole world across the planet actually felt a little jolt. India can do it without any problem. In Chandrayaan 2, we lost something. We learned a lot. I'll discuss later on in this talk. But since our audience is from diverse background, that's why I'm talking in that mode. If you will prefer to speak more easily, then we will interact at the end of talk if time permits. As per my constant of time, I'll try to finish within the frame of this time frame. Chandrayaan 3, first landing near the South Pole. Why it was very important? India is the only country till now successfully landed near the South Pole. Not exactly on the South Pole of the moon. Moon, our moon. That is the meta stage for us, for space aspirations, for our goals, for our vision. If you want to explore deep space, we need to have one stage for just like a platform. That is our moon. Moon is actually becoming a very important foundational stone from where we can take flight for the deep space exploration. Mars is the second. और चूंकि ये प्रोग्राम लाइव भी हो रहा है, तो लेट अस प्रेफर अ लैंग्वेज एज फॉर एज साइंटिफिक डेटा सेज हिंदी जो है लिंग्वा फ्रेंक्वा है हमारे देश की, और दुनिया में चौथे नंबर पे लोग उसको समझते हैं. तो अगर हम हिंदी में भी बात करेंगे तो मुझे लगता है सब तक पहुंचेगी. इसलिए इससे अच्छा है, जैसा मुझे कहा गया, विल प्रेफर टू स्पीक इन आर हिंदी. उसकी भी साइंस है. जो विज्ञान अगर हम बात कर रहे हैं तो हिंदी की भी अपने आप, किसी भी भाषा की अपने आप में एक साइंस है. हम बात कर रहे हैं ट्रायम्फ ऑफ इमेजिनेशन. चंद्रयान 3 आज अगर पूरी दुनिया मानती है कि इतने कम बजट में हमने इसरो ने ये कमाल कर दिखाया है, तो उसका सबसे बड़ा मेहनत का कारण है इसरो का डेडिकेशन. कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए इसरो पूरी दुनिया में जाना जाता है. उससे कहीं ज़्यादा साइंटिफिक टर्म्स में अगर हम बात करें तो एक्यूरेसी के साथ इंजीनियरिंग मार्वल को अचीव करने वाली एक लौती ऐसी संस्था है जो सिर्फ करके नहीं दिखाती, वो चीज़ें अचीव करती है जो बिलियन डॉलर्स खर्च करके कई कंट्रियां रिसर्च करके करती हैं, हम अपने कम बजट में. उदाहरण के लिए चंद्रयान 3 को जर्नी में चांद तक जाने में 40 दिन से ज़्यादा लगे. और जो कि अगर आप अपोलो सीरीज की बात करें, जब पहला चांद पे उतरने वाला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करें, 1969 20 जुलाई को पहला कदम जिसने रखा था उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, पहले अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री. और दूसरे थे बज एल्ड्रिन, जो 2 मानव चांद को छुए थे. और 69 के बाद आप देखिए कि अपोलो सीरीज में 6 मिशन हुए, 12 इंसानों को उतारा गया और हमेशा एक एस्ट्रोनॉट ऑर्बिट में रहता था. तो अभी तक 12 + 6 18 लोग ही चांद के करीब विथ ह्यूमंस गए हैं. उसके बाद से कोई भी इंसान चांद के पास नहीं गया है. स्पेस रोबोटिक एक्सप्लोरेशन से हमने चांद को एक्सप्लोर किया है, चाहे अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम,
रशियन हो, यूरोपियन हो, जापानीज हो, चाइनीज हो और हमारे भारत का खुद चंद्रयान सीरीज हो। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 डॉट सक्सेस के साथ हम ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं। भारत का पहला चंद्रयान अभियान जो भारत की टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने पेश करता है और ये बताता है कि भारत सिर्फ पृथ्वी की निम्न कक्षाओं तक सीमित नहीं है, वी कैन एक्सप्लोर इंटरप्लैनेटरी स्पेस ऑल्सो। मून इज बियॉन्ड आवर लो अर्थ ऑर्बिट और सिर्फ जर्नी वहां से शुरू नहीं होती है, चंद्रयान 2 आता है। और मुझे एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, प्लानिटरी साइंटिस्ट भारत के, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में, नरेंद्र भंडारी सर, जो कि वन ऑफ द अर्लियर फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं चंद्रयान मिशन अभियान के इसरो की टीम के साथ। उन्होंने एक कहानी बताई कि जब भारत सरकार को ये प्रपोजल गया चंद्रयान को कि फर्स्ट इंडिया लूनर मिशन, तो उस समय हमारे ऑनरेबल दी देन लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने शायद उस नाम को सिर्फ वो नहीं किया, उसके आगे 1 भी लगा दिया, चंद्रयान -1। 1 का मतलब है कि आगे हमें एक्सप्लोर करने के लिए मौका दे दिया। 2, 3, 4 यानी दिस इज अ सीरीज जहां हम भारत अपने सपनों की उड़ान अंतरिक्ष की दुनिया में भी कीर्तिमान रच के रचेगा और दैट इज दी हिस्ट्री। उसके बाद देखिए चंद्रयान 1 ने पूरी दुनिया को रिन्यूड इंटरेस्ट कर दिया, यानी चांद से ज़्यादा अमेरिकन, रशियन, यूरोपियन डीप स्पेस मिशन में बहुत काम कर रहे थे। लेकिन चंद्रयान 1 का एक इंस्ट्रूमेंट था M3, मून मिनरोलॉजी मैपर, पेलोड कहते हैं उसको स्पेस की भाषा में, जिसने चांद के दोनों सतह ध्रुव पे पानी का खोज का एक एविडेंस इतना सपोर्टिव दिया। दैट वाज इन कोलैबोरेशन विद नासा JPL। उस मिशन ने पूरी दुनिया की दोबारा चौकन्ना कर दिया कि यार यहाँ तो बर्फ है इसके ध्रुव पे, हम स्पेस मिशंस को फ्यूचर में एक्सप्लोर करने के लिए चांद को भी और डीपली एक्सप्लोर करना होगा। फिर पूरी दुनिया का इंटरेस्ट चांद पे वापस आने लगा। फिर भारत का मिशन आता है, अगला स्टेज, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये वीडियो आप देखिए, ये चंद्रयान 3 का लैंडिंग है, इसरो का एनिमेटेड ये फिल्म है। आप ये देखिए, इसमें साउंड भी है, अगर इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो जस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो आप देखेंगे ये लैंडर है विक्रम चंद्रयान 3 का। आप इसमें आप देखेंगे कैसे ये लैंड होता है। दैट इज नॉट एक्चुअल फुटेज, इट इज एक्चुअली अ वीडियो सिमुलेशन, एनिमेशन है, जिससे समझ सकते हैं क्या हुआ और कैसे ये रैंप खुलता है और प्रज्ञान नाम का रोवर इसके बाहर आता है। ये इतना साधारण सा दिखने वाला कमाल का ये एविडेंस भारत की इंजीनियरिंग ताकत को बताता है, साइंस की ताकत को बताता है कि हम अपने पड़ोसी खगोलीय पिंड चांद पर ना सिर्फ सक्सेसफुली उतर सकते हैं, बल्कि हम अपने इस रोवर को, बैकग्राउंड नॉइज है तो आप शायद, मुझे लगता है उसको ना भी चलाएं तो चलेगा बैकग्राउंड म्यूजिक को। तो आप देखेंगे कि ये रोवर बाहर आ रहा है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल्स। यानी कमाल की बात यह है कि आप भारतीय वैज्ञानिक, हमारा खुद का इसरो, हमारे यहाँ बना हुआ स्पेसक्राफ्ट हमारे ही रॉकेट से लॉन्च होता है, चांद की ऑर्बिट में पहुंचता है और धीरे से हमारा चंद्रयान 3 साउथ पोल पे उतरता है। और विक्रम लैंडर, चंद्रयान 3 लगभग 3 चीज़ों को मिलकर कहा जाता है। एक ऑर्बिटर जो चांद की कक्षा में है, दूसरा लैंडर जो विक्रम यानी विक्रम साराभाई, देश के पहले ऐसे विजनरी भाभा के बाद हुए हैं, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी हम कहते हैं, जिनने इसरो को एक नई दिशा और दुनिया दी। आज इसरो पूरी दुनिया में जो भी है, कर्सी 2, भाभा एंड स्पेशली विक्रम साराभाई। भाभा मीन्स डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो ये आप देख रहे हैं, ये चहल कदम करते हुए ये रोवर घूम रहा है। ये 14 दिन, पृथ्वी के 14 दिन के बराबर वहाँ पे पूरा एक दिन था, क्योंकि दिन रात मिला के लगभग 28 दिन हो जाते हैं पृथ्वी पे, जब चांद का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है अर्थ के। चांद ग्रेविटी में लॉक है अर्थ के, इसलिए वो अपनी एक्सिस पे रोटेट नहीं होता है, वो हमारी चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो वो जब कंप्लीट एक चक्कर कर लेता है, इसलिए वो अपनी ऑर्बिट में भी उसका एक चक्कर हम उसको काउंट करते हैं। तो 14 डेज एज पर अर्थ चांद पे उसमें एक्सपेरिमेंट हुआ। अगला स्लाइड, इंडिया ऑन द मून लिखा है ना, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये चांद पे चहलकदमी करने वाली, जिसमें विक्रम लैंडर रोवर से बात कर रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट खुद भी कर रहा है, कुछ रोवर प्रज्ञान के थ्रू कर रहा है, और 3 ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट उसमें भी थे। और देख रहे हैं आप कंट्रोलिंग, तो इंजीनियरिंग कमाल देखिए।
सिर्फ साइंस नहीं, हम इंजीनियरिंग भी सीख रहे हैं। आप बोलो कि दुनिया पहले कर चुकी है तो भारत को क्या जरूरत है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि लीडिंग स्पेस टेक्नोलॉजी में कमाल की जो इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है उसे हमें सेल्फ डेवलप करना होगा। वी कैन नॉट रिलाई ऑन डेवलप्ड नेशन कि वो हमें दें, वो आत्मनिर्भरता हमारे पास होना चाहिए। और दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस इसरो इज़ बीइंग एप्रिसिएटेड अक्रॉस द प्लैनेट फॉर इट्स एंडेवर। अब ये बिना पूछे आप नेक्स्ट मत करें। ये अगला स्लाइड जो है ये आखिरी एक्सपेरिमेंट में से एक था, चंद्रयान 3 का, जो लैंड की सक्सेसफुली सब कुछ हो गया तो उन्होंने क्या किया कि चलो एक बार रिस्क ले सकते हैं, विक्रम लैंडर को हम दोबारा जंप करा के वापस ला सकते हैं, क्या नहीं उसी जगह पे। तो उसको हॉपिंग एक्सपेरिमेंट कहा गया और उसको डिजाइन किया तो वो टेक ऑफ होता है, कंट्रोल, फिर लैंड हो जाता है। फ्यूचर में जो स्पेस मिशंस होंगे ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी होगी। अगला स्लाइड। अब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखेंगे क्योंकि हम रोज देखते हैं, वी कॉल मदर अर्थ नेचुरली द ओनली प्लैनेट सो फार पूरी ब्रह्मांड में जहां पर जीवन फल फूल रहा है। वी आर ग्रोइंग विथ अदर स्पीसीज, अदर प्लांट स्पीसीज, जंगल हैं, वन हैं, नदियां हैं, कितने स्पीसीज हैं जो हम जानते हैं और बहुत से डिस्कवर होना अभी भी शायद बाकी हैं। डीप स्पेस में तो अभी हमें कुछ नहीं मिला, पर डीप सी में बहुत मिलता है समुद्र के अंदर। तो ये पृथ्वी आप देखिए स्पेस स्टेशन है जिसपे शुभांशु शुक्ला भी गए थे, अभी आपने सुना होगा ना। इस 6 कंट्रीज मिला के इसको ऑपरेट करती हैं। नासा एंड रसिया आर दी मेन 2 कंट्रीज विद अदर कंट्रीज। वो देखिए रात में हमारी पृथ्वी कितनी इल्यूमिनेटेड दिखती है उन चंक्स में, स्मॉल स्मॉल चंक्स में, जहां पे लाइट आपको दिख रही है। दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन प्रेजेंस ऑन। और बाद में आप वो अरोरा देख रहे हैं, नॉर्दर्न और सदर्न बोरेलिस अरोरा होते हैं। ऑस्ट्रेलियस होता है कि जो सूरज से निकलने वाली जो रेडिएशन है जब वो पोल्स में आके हमारे अर्थ के थ्रू अंदर आता है एटमॉस्फेयर में तो रंगीन हो जाता है रात का, हरा और ऑरेंज। इसके लिए तो नॉर्दर्न कंट्रीज में बाकायदा टूरिज्म चलता है कि कुछ लोग टूरिस्ट ट्रैवल के साथ वहां जाते हैं, रुकते हैं ऑरोरास के को देख सकें। और जब भी सब सूरज में तूफान आते हैं तब ये आसानी से देखने मिलता है। और दीज आर ह्यूमन फुटप्रिंट्स कि ये डिजिटली आप कनेक्टेड डॉट्स देख रहे हैं लाइक अ ब्रेन न्यूरल नेटवर्क। ये हमारा प्रेजेंस है हमारे ग्रह, नीले ग्रह पृथ्वी पर। और ये हमारी एक फ्रिजाइल बट प्रिजर्व हमारा प्लैनेट है अर्थ। अभी तक मोर देन 5000 प्लैनेट लाइक अर्थ कि कैंडिडेट्स डिस्कवर किए गए हैं जो जुपिटर जैसे हैं, अर्थ की तरह एक भी नहीं मिला है दूसरे सोलर सिस्टम में। हमारा सोलर सिस्टम में अर्थ है इकलौता प्लैनेट जहां जीवन फल फूल रहा है। एंड वी आर एक्सप्लोरिंग, पॉसिबिलिटी है कि हम मार्स जो कि प्लैनेट है उस पे जीवन की खोज बहुत जिम्मेदारी के साथ बड़े सीरियसली दुनिया कर रही है। और एलॉन जैसे लोग तो ट्राई कर रहे हैं कि ह्यूमंस के साथ वहां पहुंचें, इसलिए दे आर इनोवेटिंग, फ्रंटियर्स पे काम कर रहे हैं, स्टारशिप जैसी चीज बना के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लगातार कि विथ ह्यूमंस वी कैन रीच टू दी मून, अनरीच्ड मार्स। और एक सबसे कमाल की बात है, जुपिटर का एक मून है यूरोपा, यूरोपा पे भी लाइफ हो सकती है। और यूरोपा पे लाइफ होने की संभावना को भी नकारा नहीं जा रहा है क्योंकि उस पे समुद्र मिला है हमें, हमारे भी समुद्र से भी बहुत बड़ा समुद्र जो उसकी फ्रोजन जो आउटर लेयर है उसके अंदर पाया गया है। अब उस पर भी साइंटिफिक एविडेंस को और कलेक्ट करने के लिए नासा का यूरोपा का एक क्लिपर मिशन जा रहा है जो लगभग मुझे लगता है आने वाले 4 से 5 साल में पहुंचेगा। वो मिशन जो है हमें और जानकारी देगा। और उसके बाद सैटर्न के 2 चांद हैं, टाइटन एंड एनसेलेडस। ये दोनों चांद जीवन की संभावना को नकार नहीं सकते हैं क्योंकि वहां पे बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी है। ये हमारा सौर परिवार हो गया। सौर मंडल से बाहर एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट यानी दूसरे तारों के इर्द गिर्द घूमने वाले प्लैनेट्स पे भी हम जीवन तलाश। हाँ, जो फील्ड में लोग काम कर रहे हैं उसको एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स साइंस कहते हैं, उसमें माल का काम हो रहा है। और वो अभी तक मोर देन 5000 प्लैनेट डिस्कवर कर लिए गए हैं। अब तो नंबर और भी बढ़ गया होगा कि इनको सक्सेसफुल कैंडिडेट्स कहते हैं, यानी तमाम जितने भी रिसर्च डेटा मिलता है स्पेस क्राफ्ट से जो अंतरिक्ष में काम कर रहे हैं, अर्थ पे काम कर रहे हैं, तो उनको कंफर्म करना पड़ता है कि वेदर इट इज एक्चुअली
celestial body which is revolving around a star. और ये अर्थ है और जीवन की तलाश यानी कहाँ से आई है, कैसे एग्जिस्ट करती है, हम कौन हैं, these are fundamental question. How our universe began, बिग बैंग पॉसिबल थ्योरी, या इसके अलावा भी कोई एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक ग्रोथ कर सकते हैं कि हम बिग बैंग के अलावा भी क्या कोई संकल्पना या किस परिकल्पना को हम चरितार्थ कर सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना. अभी तो कहते हैं एक विस्फोट हुआ, महाविस्फोट, बिग बैंग, जीवन जिससे हमारी तो अर्थ पे है परंतु ब्रह्मांड का जन्म विस्तार होता है और धीरे धीरे बढ़ते हुए आज मॉडर्न साइंस समझ पा रही है 14 बिलियन ईयर्स यानी 14 अरब वर्ष हो चुके हैं. लेकिन वो हमारे विजिबल और साइंटिफिक डेटाबेसेस के आधार पे इससे भी बड़ा हमारा ब्रह्मांड हो सकता है. वी आर एक्सप्लोरिंग. नेक्स्ट स्लाइड. अब बात आती है कुछ हमारी हम्बल बिगनिंग की. अगर भारत की बात हो और पूरी दुनिया हमसे इंस्पिरेशन ले तो उसके पीछे कुछ कारण है कि अगर अब भारत को देखें, फ्रॉम बाइसिकल्स टू द मून, बहुत फेमस पिक्चर है बाइसिकल की. लोग जिक्र करते हैं कि रॉकेट का एक छोटा सा हिस्सा नाइक अपाचे, उसका एक टॉप नोज को लेके कुछ साइकिल पे ले जाया जा रहा है. बैलगाड़ी दिखाई जाती है जिस पे एक सैटेलाइट रखा हुआ है कि भारत यानी भारत इज द कंट्री जो इतनी हम्बल बिगनिंग से कहाँ चांद तक पहुँच गई, मंगल पे जाएगी और बहुत जल्दी गगनयान आने वाले वर्षों में विथ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के माध्यम से 4 एस्ट्रोनॉट जाएंगे पहले, फिर आगे प्रोग्राम होगा और आगे 2035 में इफ़ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू प्लान, तो ऐसा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंस किया है, इसरो इज़ वर्किंग ऑन इट, स्पेस स्टेशन आने वाली है. फिर ह्यूमंस, पहला भारतीय 2047 तक हो सकता है, उसके पहले 42 तक चांद पे भी उतार दिया जाए. पहला भारतीय रॉकेट से वो यहाँ कहीं बैठा है, इस ऑडियंस में है, या जो इस प्रोग्राम को लाइव सुन रहा है, या जो बच्चे इस मॉडल्स कंपटीशन में, साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें से कोई या तो कमाल का इंजीनियर है, कोई लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बनाएगा, कोई रॉकेट डिज़ाइन करेगा, कोई मेडिकल डॉक्टर होगा, कोई एस्ट्रोनॉट्स हो सकता है, कोई इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री हो सकता है और कोई लीडर हो सकता है इस विज़न को चरितार्थ करने में, भारत को और आगे ले जाने में. वो हमारी ऑडियंस में से कोई एक है. नेक्स्ट स्लाइड. या पूरे भारत में, मेरे कहने का मतलब वो कहीं भी हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी इस तरीके के प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा होती है. वो जहाँ से चुन के अपने टैलेंट को यहाँ शोकेस करने आए हुए हैं. यहाँ देखिए जो ऊपर वाला पिक्चर है ये थुम्बाका है केरल में. यहाँ साइकिल पे 2 टेक्नीशियन हैं इसरो के, वो नाइक अपाचे रॉकेट को लेके जा रहे हैं. जो पहला इंडियन स्पेस फ्लाइट की अगर शुरुआत होती है वो 21 नवंबर 1963 को थुम्बा से नाइक अपाचे को उड़ाते हैं. कमाल की बात आप सुनेंगे, अमेरिका इस नाइक अपाचे को भारत को देता है, रसिया हमारी हेल्प करता है. दोनों आपस में कोल्ड स्पेस वार चल रहा था दोनों में, पर दोनों भारत के लिए सपोर्ट कर रहे थे. दैट इज द कैरिस्मेटिक लीडरशिप ऑफ इंडिया, लाइक विक्रम साराभाई. उनके रहते हुए, भाभा के रहते हुए ये संभव हुआ कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी भारत को, आज तो भारत पूरी दुनिया में एक अपना स्थान बना चुका है. विथ हम्बल बिगनिंग ईयर्स में भी हमारे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग का लोहा दुनिया मानती थी और हमारे समर्पण का. दैट्स वाई साइकिल बिकेम अ रे ऑफ होप. बट ऐसा नहीं है कि पूरा रॉकेट साइकिल पे बना, वो मिसनॉमर हो सकता है. इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिलती है कहीं पर भी. कुछ रॉकेट के पार्ट ले जाया करते थे क्योंकि दिन भर तो जीप इस्तेमाल नहीं हो पाती थी, एक जीप रहा करती थी, वो और भी काम करने चला जाए होगी. तो लोग कहते थे रुकेंगे नहीं, भारत तो कहता है ना रुकेंगे ना थकेंगे. तो उसी विज़न के साथ कि भाई चले हुए पार्ट्स को साइकिल पे ले आते हैं, असेंबल करेंगे और फिर 21 नवंबर 1963 को पहला रॉकेट लॉन्च कर देते हैं हम थुम्बा से. और फिर दूसरा आप बुलेट कार्ड देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बैलगाड़ी पे सैटेलाइट ले जा रहे हैं. एक कमाल का मैग्नेटिक फील्ड करेक्शन का टेस्ट करना था और जो बेहतर कोई चीज़ अवेलेबल थी उस समय तो उनको लगा बुलेट कार्ड, बैलगाड़ी. तो एप्पल एक्सपेरिमेंट है ये, इसरो का एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, जिसका लॉन्च उस समय यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने फ्रेंच गुयाना से उनके एरियन 5 रॉकेट से की थी. इसलिए एप्पल का जो पहला ए है वो एरियन वर्ड है, उस रॉकेट का नाम है. और एप्पल एक्सपेरिमेंट देखिए, कहाँ साइकिल, कहाँ बैलगाड़ी, और सीधा हम चंद्रयान 3 को उतार देते हैं चांद पर. और वो भी पहला राष्ट्र कि हम ऑल्सो रैन वाले नहीं कि हम भी दौड़े थे, हम पहली बार ही दक्षिणी ध्रुव पे उतरते हैं और डॉट
उसका एरर ऑफ इलिप्स कहते हैं कि जितना बड़ा एक एरर कैलकुलेशन की जाती है कि इस इलिप्स के अंदर ही उतारा जाना है, पर डॉट चंद्रयान 3 जहां प्लान किया गया था उधर ही उतरता है। और इसका श्रेय जाता है हमारे भारतीय साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को। एक बार जोरदार तालियां बजा दें हम। जो टीचर बच्चे वहां बैठे हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि एक दिन आप भी हो सकते हैं इस विजन मिशन में, क्योंकि मंगलयान में बहुत ज़्यादा, इवन चंद्रयान में भी जो लीडिंग साइंटिस्ट इंजीनियर्स रहे हैं वो हमारी भारतीय स्टूडेंट्स रही हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स रही हैं जो फीमेल साइंटिस्ट बनी हैं आगे चल के। दैट इज द स्पिरिट ऑफ आवर नेशन, दैट्स व्हाई वी कॉल आवर इसरो। नेक्स्ट पेज। अब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सर हमारा क्या लेना देना, सर हमारे तो नंबर अच्छे नहीं आए हैं, अभी स्कूल में मन नहीं लगता, क्लास में क्यों जाएं रोज, और फेलियर से हम बहुत डरते हैं। सो आई थिंक फेलियर इज वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल ऑफ अस। हम सब रोज कभी ना कभी मुखातिब होते हैं और यही हमारी सच और सच्चाई से सामना कराती है। फेलियर इज वेरी वेरी, मुझे लगता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन, कि वो हमारा टीचर है, सबसे बड़ा टीचर है, क्योंकि व्हेन फेलियर बिकेम द ग्रेटेस्ट टीचर, आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। और स्पेस टेक्नोलॉजी में या कटिंग एज स्पेस प्रोग्राम्स में या जो फ्रंटियर्स पे काम करने वाली टीम होती हैं वो फेल को भी इंस्पिरेशन में लेती हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, हो सकता है सक्सेसफुल ना हो। यहाँ बहुत से बच्चे एग्जीबिशंस में आए हैं, सबके मॉडल्स कंपटीशन में ना जीत रहे हों, लेकिन उनका कमाल का आइडिया हो, उसको और इवॉल्व करने की ज़रूरत हो, और बेहतर कि वो किसी दिन दुनिया को बदल दे। इस मंच पे वो आ नहीं पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमाल नहीं कर सकता, वो बिल्कुल कमाल कर सकता है। दैट इज हाउ आवर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी शुड ग्रो। वी शुड बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स लर्निंग, यानी सीखते रहना है। सिर्फ स्कूल की चार दीवारी के अंदर सीखने मिलेगा ये तो जरूरी नहीं है। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत एडवांस हो रहा है। अगर हमने अपने आप को सेल्फ एस्टैब्लिश नहीं किया तो टेक्नोलॉजी हमें वाइप आउट कर सकती है। वो काम जो हम अपने आप को करके सोचते हैं कि हम ही कर सकते हैं, अगर मशीन उसको रिप्लेस कर देगी तो हमें सोचना पड़ेगा को एग्जिस्टेंस, ह्यूमंस विथ मशीन, मशीन टू बी प्रिसाइज, टेक्नोलॉजी टू बी प्रिसाइज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन वर्ल्ड। और अब तो क्वांटम कंप्यूटिंग की बातें रिसर्च में चल रही हैं, रिसर्च हो रही है, लोग बना भी रहे हैं लैब्स में, बट रियलिटी थोड़ी दूर है। जिस दिन क्वांटम कंप्यूटर रियलाइज हो गया, आप सोचिए कि वो अनंत संभावनाओं की गणना करना भी चुटकियों से भी पहले हो जाएगा, जो शायद मार्वल यूनिवर्स की एंड गेम जो फिल्म थी एंड उसमें भी अगर थाइनोस तो चुटकी बजाने में जितना समय लेता है उससे भी कम समय में शायद हम सॉल्व कर पाएंगे। एंड दैट्स वेरी बिग इंस्पिरेशन, बिकॉज वो हाफ रीसेट करता है पूरी यूनिवर्स को। तो ऐसा कहीं टेक्नोलॉजी हमें ना करे। तो वी नीड टू ग्रो वेरी फास्ट, वेरी इंगेजिंग इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट स्लाइड। बस। और फेलियर की हम जब बात कर रहे थे तो आपको देखना होगा कि जो कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस मैंने यहाँ लिखे हैं, बट हम बात करेंगे चंद्रयान 2 और अपोलो 13 की। अपोलो 13 के ऊपर बहुत फेमस हॉलीवुड फिल्म भी है, आई विल रिकमेंड, अगर टाइम मिले तो देखिए कैसे इसको सक्सेसफुल फेलियर कहा गया है। नेक्स्ट स्लाइड। चंद्रयान 2 जो है भारत का पहला लैंडिंग मिशन था। अंतिम क्षणों में लगभग 2 किलोमीटर की ऊपर पे विक्रम लैंडर पहुंचा था और सिग्नल आना बंद हो गया था। आप सोचिए कि सितंबर की वो रात, पोस्ट मिडनाइट वाली रात, 1:41 के आसपास या उसके आसपास लैंड होना था। इंडिया लॉस्ट कनेक्शन विद चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 भी मतलब चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर से। ऑर्बिटर तो बहुत आज भी जिंदा है, सक्सेसफुली काम कर रहा है, वो लैंड नहीं कर पाए। तो हम लोग बहुत चिंतित होने की बजाय इसरो ने बहुत सीरियसली उसको रिव्यू किया, बड़े बड़े साइंटिस्ट इंजीनियर्स की टीम बनाई और उससे इंस्पिरेशन से स्पेस प्रोग्राम में ये बहुत लर्निंग लेसन्स होते हैं, फेलियर्स, और देखा कि क्या चुनौतियां थी, क्यों हो गया, कैसे सॉफ्टवेयर ने जो प्रोग्राम था लैंडिंग के ब्रेक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, आम भाषा में अगर आप बात करें, अगर आप गाड़ी तेज दौड़ा रहे हैं और आपको रोकना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेक। अगर वो ब्रेक लगाने की प्रक्रिया में अगर माइक्रो सेकेंड्स की डिले हो जाएगा, और वो कैलकुलेटेड है ब्रेक कब लगना है, कब कौन सा सॉफ्ट कब हार्ड, कभी कभी हम बहुत तेज कभी स्लो ब्रेक लगाते हैं, हम कंट्रोल करते हैं नेविगेशन को, उसको भी कंट्रोल होना था सॉफ्टवेयर से। तो उसकी ब्रेकिंग मैकेनिज्म में जो हार्ड ब्रेकिंग है वो समय पे नहीं लगने से वो डाइवर्ट हो गया, और जितने आराम से उसको टच डाउन करना था
यानी अगर इस मंच पे उसको उतरना था, वो बहुत स्पीड के साथ उतर गया, क्रैश लैंडिंग हो गई, जिसके कारण इसरो ने उसको रिव्यू किया और चंद्रयान 3 एक सक्सेसफुल ट्रायम्फ बना। और चंद्रयान 3 ने वो कर दिखाया जो चंद्रयान 2 से सीखे हम। चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग में भी हेल्प की है। चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उसने जो चांद का जो मैप बनाया है, हाई रेजोल्यूशन मैपिंग, और नासा का LRO मिशन, ल्यूनर रिकनेंस ऑर्बिटर, इन दोनों की इमेजिंग का इस्तेमाल करते हुए सेल्फ ऑन बोर्ड कंप्यूटर से उतरना सीखा हो, और उसको ALS कहते हैं। AI का इस्तेमाल भी किया इसरो ने, यानी ऑटोनोमस प्रोसीजर का, ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस, और जहां उतरना था वहां पे सक्सेसफुली चंद्रयान 3 को उतार दिया गया। नेक्स्ट स्लाइड। ये वो डिसेंट फेस है जहां आप देख रहे हैं ग्रीन वाज एक्सपेक्टेड लैंडिंग, रेड ये बता रहा है कि वी डाइवर्टेड, मतलब जो बीच का जो था वो एंटीसिपेटेड था, और जो एक्चुअल में ग्रीन है, टू बी आई थिंक आई मस्ट से कि दैट इज द रियल वैल्यू जो आ रही थी वहां से, कि वहां पे उतर गया वो, जो कि नहीं उतरना था उसे। नेक्स्ट। अब ये बहुत हिस्टोरिक है, इस पे हॉलीवुड फिल्म भी बनी है, कई किताबें लिखी गई हैं। अपोलो 13, अपोलो 11 से अपोलो 17 मिशन हुए हैं नासा के, जिसमें ये 13वां भी मिशन था। लेकिन ये जैसे ही लॉन्च हुआ, 3 अंतरिक्ष यात्री बैठे हुए थे, इसको क्या कहा गया, देखिए, द सक्सेसफुल फेलियर। एक फेमस लाइन हॉलीवुड फिल्मों में सुनने मिलने लगी हमें, ह्यूस्टन वी हैव हैड अ प्रॉब्लम। यानी कुछ चंद पलों के बाद ऑक्सीजन टैंक जो होता है, नेक्स्ट स्लाइड। आप देख रहे हैं स्पेसक्राफ्ट को, दिस इज अपोलो 13। इसका जो ऑक्सीजन चैम्बर है, आप इस तरफ आप देखेंगे राइट साइड वाला पोर्शन, उसमें आप देखेंगे कि वो डैमेज्ड ऑक्सीजन टैंक लिखा हुआ है ऊपर से, वहां एक्सप्लोजन हो जाता है, और एस्ट्रोनॉट्स उसके अंदर बीच वाले क्वार्टर्स में रहते हैं जो, और सबसे फ्रंट में जो है वो लैंडर है जो चांद पे उतरना था, और ये बीच वाला पार्ट वापस आता है, जिसे हम, आप समझ लीजिए, लूना मॉड्यूल का हिस्सा एक्वेरियस नाम दिया गया था, ओडिसी था ले जाने वाले मॉड्यूल का नाम, कमांड सर्विस मॉड्यूल। इसमें इतना भीषण एक्सप्लोजन होता है, उसके बाद ना ऑनबोर्ड एस्ट्रोनॉट आपाक होते हैं, और नीचे लगभग 4 लाख इंजीनियर, साइंटिस्ट और सपोर्टिंग टीम काम करती है नासा की। वो उस समय बड़ा डिसीजन लिया जाता है बहुत कम समय में, और वो कंप्यूटर्स, आपको बता दें, आज हमारे मोबाइल जितने एडवांस नहीं थे, जो इसमें कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल करने की विजन देखिए, लगन देखिए कि वो कर दिखाना। अब सबसे बड़ी चुनौती कि अर्थ की ऑर्बिट से आप बाहर निकले ही हैं और पता चलता है एक्सप्लोजन हो गया, तो अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाना ही अब सबसे बड़ा मिशन हो गया, रादर देन कि चांद की कक्षा में ले जाके उतार देना। वो पूरा प्लान इमीडिएटली चेंज होता है, और कैसे वापस लाया जाता है। मैं बोलूँगा, अगर आप जैसे दिन में या वीकेंड में कोई फेवरेट डिश खाते हैं, तो एक अच्छी फिल्म जरूर देखा करिए। उसमें से कमाल की फिल्म आई रिकमेंड, अपोलो 13 देखिए, आपके ना रोंगटे खड़े ना हो जाएं साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और इंजीनियरिंग के इस कमाल के एफर्ट्स के लिए। उनने हूबहू क्रिएट किया है, एंड वी आर हेड्स ऑफ टू टॉम हंक कि उनने कमाल का अभिनय भी किया उनकी टीम ने। तो इससे आपको पता लगेगा कि कैसे इस मिशन को सक्सेसफुली वापस लाया जाता है। अंत में पूरी पावर बंद हो जाती है, चीज़ों को डिटैच कर दिया जाता है, ठंड लगती रहती है, कैसे ऊर्जा बचाई जाती है। और ये सर्वाइवल की भी कहानी है कि इंसान विषम परिस्थितियों में कैसे बाउंस बैक कर सकता है विथ टीम एफर्ट्स, कि कैसे आप टीम, एक्सपेरिमेंट, इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन से कैसे आप अपने आप को रीएस्टैब्लिश कर सकते हैं उन मुसीबत के क्षणों में जो आपकी फेवर में भी नहीं रहे हैं। अगला स्लाइड। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स, मैं ये पिक्चर बहुत सोच समझ के आपके लिए लेके आया हूं। ये टॉक ही पहली बार डिजाइन की है आपके लिए, कि इसमें तीनों एस्ट्रोनॉट देखिए, 2 लोग सो रहे हैं और एक काम कर रहे हैं, वो ड्यूटी बेसिस पे। इनको पता चल चुका है एक्सप्लोजन हो गया है, प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन चेहरे पे, अगर हमारे स्कूल के बैग से कुछ खो जाए तो हम टीचर को छोड़ते नहीं हैं, मैम ये हो गया, साइकिल में कुछ हो जाए, या घर में भी, तो हम बड़ा सिंसियरली सीरियस प्रॉब्लम ले लेते हैं। पर देखिए, अंतरिक्ष से वापस आ पाएंगे कि नहीं, जब तक वो आ नहीं गए तब तक तो गारंटी नहीं थी। पूरा इट वॉज अ मिरेकल तो नहीं था, इट वॉज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उनको भरोसा था मैथमेटिक्स पे, उनको भरोसा था इंजीनियरिंग पे, उनको भरोसा था कैलकुलेशंस पे, उनको भरोसा था ह्यूमन एंडेवर्स पे, और उनको भरोसा था ह्यूमन एस्पिरेशंस पे, कि नीचे इतनी बड़ी टीम बैठी है लगातार जो सॉल्यूशंस ढूंढ रही है,
और देखिए वो कैलकुलेशंस कर रहे हैं मिस्टर लॉवेल, और बाकी लोग अपनी स्लीप टाइम के हिसाब से नींद कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि इतने घंटों से ये चैलेंज बना हुआ था और ये लौट के आना, ये बताता है विषम परिस्थितियों में भी हमको कितना कूल एंड कंपोज रह के रास्ते ढूंढना पड़ते हैं। और अगर वो स्किल सेट स्कूल लाइफ से हम सीख जाते हैं तो हमारी जर्नी बड़ी ही जॉयफुल हो जाती है। फिर हमें दुनिया नहीं बताएगी क्या पढ़ना है, you will know what you want to become and what you want to study. That is an inspiration, biggest source of learning. Next slide. और स्कूल की बात करें, इनोवेशन की बात ना करें, लैब की बात ना करें, लेबोरेटरीज की बात ना करें, कैसे हो सकता है? You can see here, without experiments we cannot learn science. विज्ञान को प्रयोगशालाओं से दूर रखोगे अगर, तो नेचुरली साइंस फिर साइंस नहीं रह जाएगी। साइंस ऑलवेज बिलीव इन एक्सपेरिमेंटेशन। आप तोड़िए, फोड़िए, जोड़िए। हमारे साइंस सेंटर में तो इनोवेशन हब होती है, वेयर यू कैन कम एंड रजिस्टर एंड डू योर एक्सपेरिमेंट्स एज पर योर चॉइस एंड इंटरेस्ट। बट इन स्कूल यू कैन यूज योर लेबोरेटरीज। उन दरवाजों को खोलिए और जाइए उनके पीछे, उन इंस्ट्रूमेंट्स को खोलिए जो शायद कहीं रखे हैं, और अपने लैब इंस्ट्रक्टर टीचर के साथ, साइंस के टीचर्स के साथ समय बिताइए, शायद उससे भी कहीं ज़्यादा जो उसके विषय की पुस्तक के साथ आप बिताते हैं। देन जर्नी विल बी समथिंग एल्स। इसलिए इनोवेशन ग्रो करता है हमारी क्यूरियोसिटी को, और अल्टीमेटली किसी भी राष्ट्र को अगर आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है, अगर आत्मनिर्भर बनना है तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, इनोवेशन ड्रिवन कंट्री बनना है, तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड भी डेवलप करना होगा, जो कि हमें हमेशा निर्भरता खत्म करें हमारी इंपोर्ट की और पड़ोसी की। हम इंजीनियर हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल, पर घर की लाइट हमारी इलेक्ट्रिशियन सुधारता है, तो बड़ी चुनौती है। हो सकता है हमें खोल के उसको कैसे कनेक्शन करना है हमें शायद दिक्कत जाए समझने में, लेकिन एक जो बहुत बड़ी ट्रेनिंग नहीं लिया, वो पता नहीं हमारी घर की वायरिंग ऐसे करके जाता है कि फिर तो हम भगवान का ही नाम लें। शायद हो सकता है उसमें कुछ मैथमेटिकल सिमेट्री भी ना हो, पर वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से पूरी वायरिंग कर जाते हैं घर की। बट क्या वो क्वेश्चनिंग एटीट्यूड हमारे अंदर है? कैन वी डू इट? आई थिंक ये स्कूल्स में या सब जगह, इवन हायर स्टडीज में भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। अब सबसे बड़ी बात कि टेकिंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। यहां मैं देखिए किताब भी दिखा रहा हूं, मशीन भी दिखा रहा हूं, एक बल्ब भी दिखा रहा हूं। बल्ब इनोवेशन का प्रतीक है, एलईडी बल्ब नहीं। जो पहले इनकंडेंसेंट बल्ब थे, वो जिससे हम गर्मी ज्यादा निकलती थी, रोशनी कम, वो बल्ब जो है पूरी की पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक मतलब गजब का साइंस का नमूना कह सकते हो आप उसको, कि वो थॉमस एडिसन एल्वा जिन्होंने बल्ब की रिसर्च के बाद बल्ब बनाया, वो हमारी इंस्पिरेशन को भी बताता है, हमारे इनोवेशन को भी बताता है कि हमें सोचना होगा, हमें इमिट करना होगा एनर्जी, हमें एक्सप्लोर करना होगा। एंड हमें आज की डेट में अगर आप बात करें तो बेहतर एलईडी से ओएलईडी बल्ब बनना होगा, क्योंकि जितनी पावर आप यूज कर रहे हैं उसको मैक्सिमम को लाइट में कन्वर्ट करना है। ये हीट भी रेडिएशन के थ्रू बाहर छोड़ते थे, तो इसलिए बल्ब बहुत गर्म हुआ करते थे। पर ये हमारा इनोवेशन है, किताबों से बाहर एक्सपेरिमेंट होगा, तब हमारी फ्लाइट जो है, भारत जो है अपने आप को बहुत जल्द ही पूरी दुनिया के सामने आपकी पूरी पावर के सामने, आपकी जिज्ञासा के साथ, आपकी एनर्जी के साथ अपने आप को एक भारत को, नया भारत का चैप्टर लिखेगा। अगली स्लाइड। और ये है वो लॉन्च पैड जो मध्य प्रदेश में है, हमारा रीजनल साइंस सेंटर भोपाल ऑन द सेम श्यामला हिल्स। वेरी क्विकली आप देख सकते हैं कितनी कमाल की जगह है। इसको आपके स्कूल के टीचर कहें या स्कूल कहे तभी नहीं लाना है, आप खुद भी आ सकते हैं। 9:30 से 6 सातों दिन खुलता है ये, और कमाल की दुनिया है। देखिए लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं साइंस को। साइंस इज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ स्कूल सिलेबस और अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग। आप कैसे एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और आप लाइफ के किसी भी पहलू में क्यों ना हो, आप अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ, आप लॉजिकल रैशनल थिंकिंग के साथ, लॉजिकल अप्रोचेस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए छोटे छोटे माइंड्स डायनासोर्स के पास। अब देखिए हमारी साइंस सेंटर की दुनिया में क्या कमाल कर सकते हैं आप आके। इट हैज़ नो रिस्ट्रिक्शंस, आप कभी भी आइए, एंजॉय करिए, सीखिए। एंड आई प्रेफर, आई से विथ हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा मैं, विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ रीजनल साइंस सेंटर,
जो कि आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल है, हमारी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की एक इकाई मध्य प्रदेश में, कि आप जरूर आएं, अपने परिवार के साथ आएं, बड़ों के साथ आएं। दिस इज अ प्लेस ऑफ लर्निंग, इट्स अ प्लेस ऑफ साइंस टूरिज्म। एक पर्यटन की जगह है, एक्सप्लोर करें रादर देन पढ़ाई, यू कैन एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट स्लाइड। अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैंने एक लिखा भी है, यूनिवर्स बिगिंस विथ अ क्वेश्चन। अगर हमारे जहन में सवाल पैदा नहीं हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि कठिन डगर है पनघट की। सवाल जो हैं जवाब से कहीं ज्यादा जरूरी हैं विकास के उस चक्र को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर मानव सभ्यता आज इस प्लेनेट पे फल फूल रही है तो कहीं ना कहीं उन लाखों हजारों लाखों सवालों की बदौलत जो कहीं ना कहीं किसी साइंस, ड्रामा, पॉलिसी, आर्ट, टेक्नोलॉजी, किन किन लोगों ने दुनिया बदली है। आर्टिस्ट ने सवाल पूछा है, कल्पना के सहारे, तारों के सहारे, कल्पना के सहारे, कविताओं के सहारे गढ़ा है संसार को, और वो गढ़ने से फिर शायद उनके उत्तर मिले हैं। उत्तर तो अंत हो सकता है पर सवाल सतत प्रक्रिया है। और अगर ये हमारे अंदर, क्या कहेंगे लोग, अगर उन लोगों के लिए चिंता की आपने तो बाद में ही वही लोग कहेंगे। इसलिए उन लोगों की चिंता नहीं करना है, हमें पूछना है बिंदास। एंड यू नीड टू बी एन एक्सप्लोरर। एक अन्वेषण की दुनिया में आपको उतर जाना है। और इसलिए इस लाइन को चरितार्थ करती है ये बात कि स्काई इज नॉट द लिमिट। स्काई तो वो छोटा सा डायमेंशन है जो हमने पृथ्वी को बाहर से देखा ना, बहुत टाइनी हिस्सा है। ब्रह्मांड आपका है पूरा। यू कैन टेक योर जर्नी बियॉन्ड द रेल्म ऑफ द विजिबल यूनिवर्स ऑल्सो। आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी हो तो जरूर। मैं कुछ फिल्में रिकमेंड करूंगा साइंस के लिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। और इंडिया का जो फ्यूचर है वो ये है, हमारा यूथ जो स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, यू आर द फ्यूचर। टाइम जो है यूनिडायरेक्शनल है ना, आगे बढ़ेगा, वी विल ग्रो। जो आज आप यहां बैठे हैं कल यहां होंगे, स्पेस में होंगे, मंगल पे होंगे, इसरो को कहीं और से लीड कर रहे होंगे। भारत सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होकर रेयर अर्थ में मेटल मटेरियल्स पे कुछ काम कर रहा हो, तमाम क्वांटम कंप्यूटर्स पे काम कर रहे होंगे। पता नहीं, ये टॉक का टाइम इतना लिमिटेड है कि सब बातें तो नहीं कर पाएंगे, पर एंडलेस जर्नी है, लाइक अ बैनियन ट्री, बरगद के वृक्ष की तरह हम एक्सप्लोर होते रहेंगे। और इसलिए लिखा है, यू कैरी द ड्रीम्स ऑफ अ राइजिंग इंडिया। आप उस बढ़ते हुए, उभरते हुए इमर्जिंग भारत के वो सपना है जो आपको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। इसलिए हमारा भारत पूरी सभ्यताओं में सबसे अलग है, जहां हमारी फिलॉसफी, जहां हमारी एंशिएंट विजडम हमें मॉडर्न साइंस को दोबारा बेहतर समझने का एक दृष्टिकोण देती है। सिर्फ मॉडर्न साइंस ही हमारे लिए बदलाव का हिस्सा नहीं है, हमारी खुद की हजारों सालों की यात्रा से हम उसको एनरिच कर सकते हैं और बेहतर भविष्य का निर्माण सिर्फ हमारा नहीं कर सकते, वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरा पृथ्वी के बारे में हम सोच सकते हैं, जो कि सबसे ज्वलंत समस्या है, क्लाइमेट चेंज। जैसा मैंने पहले बताया, हमारी नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स की साइंस सिटी की गैलरी है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जिसको इंटरनेशनल आइकॉम अवार्ड मिला है दुबई में। सो दिस शोज इंडिया इज राइजिंग, स्प्रेडिंग साइंस, एंड आप सब उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अंत में बहुत सारी फिल्में हैं ऐसी जो हमारी दुनिया बदलने की क्षमता रखती हैं। इनमें से कुछ चंद फिल्मों के मैं पोस्टर आपको दिखा रहा हूं। ये पोस्टर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए, समय मिले तो मार्सियन, इंटरस्टेलर, अपोलो, हिडन फिगर्स, अक्टूबर स्काई, ग्रेविटी, कॉन्टैक्ट, और आप देख सकते हैं फर्स्ट मैन, इस तरीके की फिल्में देख सकते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी, समझने पे कि ये दुनिया कमाल की है। जो कैमरामैन इसके पीछे खड़े हैं वो यहाँ के स्पेस और टाइम को, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, और जो कैमरामैन फोटो खींच रहे हैं वो समय को भी कैद कर रहे हैं। वो पल, वो क्षण उनकी डिवाइस में अभी छप जाएगा डिजिटली। नेक्स्ट स्लाइड। और इसी बात पे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड लिसनिंग, और सी यू अंडर द स्टार्स एट रीजनल साइंस सेंटर भोपाल। ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, आयोजकों को, खासकर स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन और एनसीईआरटी दोनों को, और सरकार की तमाम लीडरशिप को कि जो इतना अच्छा इनिशिएटिव मध्य प्रदेश के लिए भी चुना कि यहाँ के बच्चे उनसे एक्सपोज हो सकें, जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स लेके आए हैं देश से और यूनियन टेरिटरी से। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। अब समस्याओं का हल निकलना चाहिए,
अब समस्याओं का हल निकलना चाहिए। हर छात्र में एक वैज्ञानिक होना चाहिए। इसी को चरितार्थ करता हुआ हमारा ये पूरा प्रांगण आज जमा है बहुत युवा वैज्ञानिकों के साथ। और निश्चित ही आकाश से परे भारत का अंतरिक्ष महाकाव्य को सर लिखने वाले आदरणीय साकेत सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य हमारे बच्चों को दिया, यहाँ के किशोर वैज्ञानिकों को दिया। हम हृदय से आपका के आभारी हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यहाँ जितने भी किशोर वैज्ञानिक उनके मार्गदर्शी शिक्षक यहाँ पर बैठे हैं एक नई ऊर्जा के साथ इस प्रांगण से जाएंगे, इस मंच से यहाँ से जाएंगे। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आदरणीय सहायक संचालक महोदय जितेंद्र सोमकुमार सर से निवेदन करूंगी कि सर को जिज्ञासु पत्रिका भेंट करें आदरणीय सर, और करतल ध्वनि के साथ में सर का स्वागत करें। मैंने सुना मैं भूल गया, मैंने देखा याद रहा, मैंने किया मैं सीख गया। यही विज्ञान की विचारधारा है। और अंत में इस सत्र के समापन से पूर्व मैं हमारे आदरणीय सर से निवेदन करूंगी कि आभार प्रदर्शन करके आज के इस सत्र का समापन करेंगे आदरणीय सोम कुमार सर। आज के 52वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी 2025 में आयोजित पॉपुलर साइंस टॉक में उपस्थित प्रोफेसर साकेत सिंह कौरव जी, डायरेक्टर रीजनल साइंस सेंटर भोपाल के द्वारा दी गई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस से डेफिनेटली हम सब बहुत गौरवान्वित और लाभान्वित हुए हैं। मैं स्कूल शिक्षा विभाग एवं NCERT की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू।